send you the recorded video. Yeah, you can tell now. Why database? Why people prefer to put it on a database? From the SCADA live information, they are putting in the database. They are not using other formats like CSV or XML. Still, it is there, but people don't prefer it. You can answer me. Any So, known points? sir, firstly, a database is not डेटाबेस में आप मल्टी पर काम कर सकते हैं, मतलब जो डेटा रिकॉर्ड होगा ना सर, उसका कोई लिमिट नहीं होता है। लेकिन अगर आप एम एस एक्सेस एम एस एक्सेल आप यूज कर रहे हैं MS तो उसका Access एक भी database ही है, actually. In other words to say, या in Excel you don't उसकी have that much of space or capacity to store the information what या a database can handle. An Excel sheet cannot handle. That's why people prefer to database. Any other points? यस Okay, that is a नो good सर point, valid point. Any other? नो सर Data encryption. अब Database, a दे- normal SQL हाँ database provides 128-bit encryption of the data. The data available in the database, if you open and see, it will be like Chinese or in other language. You cannot understand. Simply, people cannot take the data. ओके आपने सर कभी देखा हाउ है मैनी आपका डेटाबेस है ना इधर हाँ ये सी में अगर आप प्रोग्राम फाइल्स में जाएगा ओके हाँ योर एसक्यूएल सर्वर इज हियर करेक्ट ये करेक्ट सर या इन दिस you have this database correct db files are यस there सर not this I think client sdk let me open here odbc okay fine. These tools you have a place where the database is available here wait I will show you local okay let it be the db um, resources english this is only a resource सर यू आर यूजिंग माय सिस्टम no sorry I'm sorry about it wait ओके sorry okay let me connect I was checking in my हाँ system database sorry for that ओके ओके नो प्रॉब्लम सर if you go to its properties where is our data the training data it was in this instance actually if I am right see? Not in this instance ओके it's okay fine where is this data available let me see if I go to the properties I should able to get the location where it is available C program file, Microsoft SQL Server, MS SQL 12, SQL Express. Correct? So we will go there. करेक्ट C program files, प्रोग्राम फाइल्स Microsoft SQL Server, and then you had a Microsoft SQL Express, MS या SQL. के अंदर अगर आप डेटा में जाओगे okay still continue no issue you have the database this is my database available here correct मूवीकॉन करेक्ट सर ये मेरा database है I am not bothered about other one my database I'm just trying to open okay ओके I'll just try to open with a notepad or something okay ओके सर what happened first of all I don't have a permission okay still if even though if I have a permission let me open with notepad again क्या बोला है you don't have a permission to open this file
एडमिनिस्ट्रेटर ऑप्शंस चाहिए बोल रहा है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको, आई विल लेट मी पुट इट ऑन अ डॉक्यूमेंट। दिस इज एक्सेसिबल टू एवरीवन, करेक्ट? Yes, correct, sir. So any data available here, anybody can access. So I have taken your database, okay, completely, and I will try to open this now in the notepad. Now database is open, okay। इसमें कुछ समझ में आ रहा है आपको? No, Because sir, ये क्या है? everything is encrypted, okay। So even if the Okay, database is, somebody has even copied the file from you, they have taken in the pen drive, they're trying to open, you can't able to see any information because most of the database information will be encrypted. This is the reason okay, why people put it on the database। जो भी डेटाबेस हो उसका okay, उनका खुद का एन्क्रिप्शन होता है। कोई कोई डेटाबेस का 256 बिट एन्क्रिप्शन रहता है, किसी किसी का 125 128 बिट एन्क्रिप्शन रहता है। तो एन्क्रिप्टेड डेटा you cannot access, others cannot access, okay, only an authorized user can able to access। So providing security is the main thing why people put it into database, no other thing। I can put very and moreover, each and every rows and columns of a table in a database, actually in the database we don't say it as a row and column, we say it as field and record set। कॉलम को okay, sir. फील्ड बोलते हैं, Hmm. एक कंप्लीट रो को रिकॉर्ड सेट बोलते हैं डेटाबेस लैंग्वेज में। तो दिस फील्ड्स एंड record set will consume very less space comparing to the same data you're putting on an Excel sheet or in a Word document। The Okay, consumption of space is very less because each and every field is already defined। आपको database define करना ही पड़ेगा। एक टेबल आप क्रिएट करते हो तो डेफिनेटली आपको टेबल को, कॉलम्स को कितना आयोबाइट है, क्या डेटा टाइप है, आपको डिफाइन करना पड़ता है। एक्सेल शीट में आप डिफाइन नहीं करते हो। एक्सेल शीट में खाली एक्सेल के अंदर डेटा डाल के जाते हो और डिफॉल्ट कुछ स्पेस export ले करते लेता हैं। है, करेक्ट, डिफॉल्ट स्पेस ले लेता है, ओके। Yes, sir. और Okay, सेम इंफॉर्मेशन आप एक डेटाबेस में रखोगे, वो 1 MB कंज्यूम करेगा। सेम इंफॉर्मेशन एक एक्सेल में, वर्ड में 100 MB से लेके 1000 MB तक कंज्यूम होता है, सेम इंफॉर्मेशन। तो keeping your in a compressed, we can't tell it as compressed because we can still compress the database information। अगर पुराना डेटा है तो आप कंप्रेस करके भी रख सकते हो डेटाबेस के अंदर, ओके। ये okay, सारे ऑप्शंस okay. है। और डेटाबेस यूजेस a स्पेशल लैंग्वेज कॉल SQL। वो क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर्ड SQL. क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो क्वेरी लैंग्वेज के Yes. यूज से आप एक 1 ईयर 2 ईयर का इंफॉर्मेशन इकट्ठा आप रिट्राइव कर सकते हो। सर कितने ईयर का डेटा SQL में हम स्टोर कर सकते हैं? देर इज नो एनी लिमिटेशन यार। आपका जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, आप कितना ईयर से अब आप कौन सा बैंक यूज कर रहे हो, ICICI या एक्सिस? कितना ईयर का डेटा आप POB. उठा सकते हो? कितना भी ईयर का उठा सकता है ना, सारी चीज डेटाबेस Yeah. में ही पड़ा हुआ है। देर इज Yes, नो sir. एनी रिस्ट्रिक्शन until unless there is a restriction in your hardware where the database is installed and stored। that's why people used to Okay. keep data centers, Okay, ओके। sir. तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट SQL 2000 जो भी इंस्टॉल किया है, एक्सप्रेस एडिशन इंस्टॉल किया होगा आपने, फ्री लाइसेंस, उसका कैपेसिटी 10 GB है, Okay. ठीक है। और Yes, sir. ओके, so more information you want to, because I'm not a database guy, okay, I have some basic information, you can learn it in W3 schools। there is a website called Okay. www.w3schools, you can go there, you can learn what is SQL and things like that, okay। Okay, sir. and it is mandatory once you are into automation where you are on the SCADA side, some basics are required। I'm not telling you to be an expert in database, basics is required Okay. to handle। अभी एक एक क्वेरी और एक टेबल
आपका डिस्ट्रीब्यूटर ने बना के दे दिया आपको, और ओके लोकेशन पे जाने के बाद कस्टमर और एक कुछ एक्स्ट्रा पूछ रहा है, यू शुड बी इन अ पोजीशन टू एटलीस्ट मॉडिफाई इट. ओके सर Correct. So you always learning something is not a bad thing. It is going to increase your knowledge, and whatever we learned is limited. And with that, right now scenario, how much we learn, it's not sufficient, because new things are coming, and you have to get yourself updated, right? ओके So सर राइट learning database is going to just add some good points on your career. It is not a bad thing. So you can learn. Spend some half an hour, 15 minutes a day. ओके You सर no need to spend entire day, 4 hours, 5 hours, and all not required. Just 1 hour, half an hour. यहाँ पे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल दिया है, और इधर ही आप खुद टेस्ट कर सकते हो. आपका एग्जाम्पल दिया है, ट्राई इट योरसेल्फ, आप टेस्ट कर सकते हो, and you can learn. That is how we are going to learn. That is how I have learned. Okay. ओके सर Fine. So, so all nowadays people are doing lot of codes in Python and in artificial intelligence. And if you can able to learn Python also, it is good for you. Being in automation industry, it's good. Okay, fine. Anyhow, ओके you understood, right? Why we are going for a database, and data are encrypted. Simply, I cannot able to access those data. You need to find follow a protocol. If you want to meet a CM, give a petition. There is a protocol to be followed. Simply, you cannot go and ask your CM, give me water. My area water is not there. You please give me water. You cannot simply go and ask. Same way, any data available in the database, simply you cannot go and ask, hey, database, give me this data from the year 2023 to 2024 October. I need some information. If you ask, that database cannot understand. Okay. ओके So सर they have created a language called structured query language. The एसक्यूएल name the name itself says that it is a query language. Query matlab something asking. Okay. So to ओके ask something, there is a structured protocol they have made, and they have named it as structured query language. From the name itself, you can understand many things. Structured, it is not non-structured. It is something structured, and in that structure only you can ask a query. For example, if you are going for an interview for asking some, taking some interview to a celebrity, already the questions will be structured and given to you. You cannot ask something apart from that. If you are just taking an interview for Modi, you cannot simply ask whatever you want. They would have written a protocol, they would have structured it, and that only you can ask him. Correct? Same way, करेक्ट your database is also something like that, because database is not handled by some living being like you or me. It is handled by a computer. Computer cannot understand our language. So they have ओके created some special words and keywords. Once you pass that keyword, then only the computer will understand what to do. Till that keyword is not passed, it can't understand. What are all the keywords? I'll just take a new, okay? If ओके you want, you can save it here. Okay. What is database management system? Database management system is of two types. One is RDBMS, which is रिलेशनल डेटाबेस the another one is just DBMS. बीएमएस This is non-relational. ये DBMS हो या RDBMS हो, it is further, let it be anything. It's a further, it is nothing but a collection of schema. Schema बोलते हैं स्कीमा या what is schema? नो सर आई डोंट नो Schema is nothing but
Collection of data. Collection of data. Collection. Collection of data. Schema is collection of data. Yes, Sure. sir. No. Collection Okay. of data will come in the Yes. last. Yes, sure. It's a collection of database. Okay. Okay. एक स्कीमा के अंदर बहुत सारा डेटाबेस रह सकता है. फॉर एग्जांपल ये जो है ना, ये जो है ना, इसको हम इंस्टेंस या स्कीमा बोलते हैं. ओके. Okay. ये एक Server name. स्कीमा होता है. इसको जो सर्वर नेम में जो लिखा हुआ है, इसको माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल में इंस्टेंस बोलते हैं. अगर आप इफ यू हैव वर्कड विद Oracle, they will call this as a schema. Schema is nothing Okay, but sir. collection of databases. Okay. इसके अंदर बहुत Okay, सारे sir. डेटाबेसेस है ना. Hmm. करेक्ट ना. Yes, sir. So it's a collection Correct, of sir. database. You are finally going to the result, but to retrieve to the result there are so many steps is there. Okay. Step by step only you can approach. Directly you cannot involve. No, everything is like that, right? If you want to get an engineering degree from the age 3, step by step schools होता है. Schools पढ़ने के बाद PUC के बाद college, उसके बाद आपको डिग्री मिलता है after 19 years, 20 years. Correct. Correct, sir. Yeah. So schema is not a collection of data. Schema is first collection of database. And what is database? That applies to everything. If you are approaching for a job, if you are approaching for your partner, life partner, everything is like, see, directly you cannot go and say. There is a steps to be followed. Then only you will get it. Correct. Correct, sir. Yeah. Database is collection of. Database क्या है? Database के अंदर क्या Collection है? of record. Collection of tables. Correct. Collection. Yes, sir. उसके बाद क्या है? Stored procedure, functions, सारे चीज रहता है. Okay. So database is collection of tables, functions, Functions. indexes. Indexes, let me check. Indexes will be part of your table. It will not come under database. Okay. Okay. Function क्या है? Stored procedure क्या है? आप update कर लो if you want. Okay. And what is table? Table is collection of rows and columns. Correct. Correct, sir. Collection of row and column. Yeah. But in our language, database language, we call the row as record set. Correct. Which is nothing but row. Correct, मैं sir. bracket में लिखता हूँ. And what is record set? Collection of Collection of cell. collection of cell. Collection Uh, of cell. One cell from one row, another cell from another row. It's from the same row. So it is collection of columns. okay. Okay. ठीक है And सर. what is fields? Fields में आता है आपका जो बोला था ना data. Collection of cell. Yeah. Fields is nothing but fields is not collection of cells. Field itself is a cell actually. Okay. So field is Okay. collection of data with a specific data type. हाँ इसको हम datum भी बोल सकते. ठीक है. Okay. ठीक है. तो क्योंकि कंप्यूटर को पता नहीं चलता है, क्योंकि कंप्यूटर ABCD को भी 0 1 बोल के स्टोर करता है, 0 1 को भी 0 1 बोल के स्टोर करता है. Binary system, sir. बाइनरी सिस्टम है. तो वो जो फील्ड है वो क्या डेटा टाइप है वो मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा. ये नंबर है बंदा Okay. ने भेजा मेरे को, या ये एड्रेस भेजा है, उसको पता नहीं है. हमको बोलना है बॉस यू कंसिडर दिस एज एन एड्रेस, बॉस यू कंसिडर दिस एज एन इंटीजर, you consider this as a string. We have to tell to computer because computer is an
Computer is a works under Computer is binary, and he is an idiotic machine. He doesn't have okay. intelligence like us. Okay, so you treat him like an idiotic machine. You understand him and treat him. He will work for you. Even your PLC is like that. एक बार आपने एक कमांड दे दिया है, जब तक वो कमांड बंद मत करो बोलेगा, वो बंद नहीं होगा। आपको एक प्रॉपर टाइमर के लगा के, उस टाइमर 2 सेकेंड्स 1 सेकेंड्स के बाद फिर वो कमांड को ऑफ करने के लिए भी आपको प्रोग्राम लिखना पड़ता है, ऑन करने के लिए भी लिखना पड़ता है, ऑफ करने के लिए भी Yes, sir. लिखना पड़ता है। और फॉर Yes, एग्जाम्पल sir. इफ इट इज robotic arm, you have to tell at which x-axis, which y-axis, which z-axis it has to swing, and which position it has to restore back. एक बार swing होके उधर ही रुक जाएगा, उसके बाद Hmm. return to your original position, उसका पोजीशन के एक्स वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट्स आपको भेजना ही पड़ेगा, नहीं तो उसको समझ में नहीं आएगा, बिकॉज दोस आर ऑल इडियटिक मशीन्स, दे डोंट हैव ब्रेन। अगर आप Okay, sir. एक सर्वेंट को बोलेगा कॉफी चाहिए, उसको ये नहीं बताने का कि कॉफी में इतना चक्कर डालो, इतना पानी डालो। he somehow he assumes and prepares that coffee, he puts into the cup and he gives to you। और उसका एक कैलकुलेशन होता है, क्या है कि आप एक एक घंटा में वो कॉफी कप पी लेगा, कॉफी पूरा कर लेगा बोल के, एक घंटा के बाद आके आपके टेबल में चेक करेगा, अगर आप पी चुका है तो उसको लेके चला जाएगा आपका Yes, सर्वेंट, sir. because he is a human being, he is having some intelligence। You expect the same thing a robot or a robotic arm or a computer will do if your servant is a computer instead of a human being? नो, करेक्ट। कंप्यूटर नहीं कर सकता है Correct. या रोबोट नहीं कर सकता, उसको बोलना पड़ता है बॉस एक कप उसको क्रिएट कर, कमांड एक देना पड़ेगा ना। हाँ एक कप ऑब्जेक्ट ले लो, उसमें 2 टीस्पून का चक्कर डालो, उसमें एक 100 ml का पानी डालो और एक 200 ml का मिल्क डालो, उसके बाद एक 2 टीस्पून का कॉफी टी डालो, मिक्स करो एक 5 मिनट, सॉरी एक 5 सेकेंड्स टू 10 सेकेंड्स मिक्स करो उसको ठीक से, उसके बाद थोड़ा एक और एक 5 मिनट्स वेट करो, फिर उसको उठाओ, 100 स्टेप्स फॉरवर्ड, 100 स्टेप लेफ्ट राइट, सब कुछ बोलना पड़ता है, बिकॉज ही इज idiotic machine। So you think that in the mind and you start programming, then your programming will never go bad। Otherwise, if you think computer better than you are going to end up with problem। Yes, Is sir. everything is our mindset and assumption only। So treat it as how it is। Okay। तो इसको Okay. सारे चीज बोलना पड़ता है, इसीलिए एक स्टेप बाय स्टेप सारे चीज उन्होंने बताया, बना के रखा है इधर। RDBMS, उसके अंदर स्कीमा, स्कीमा के अंदर डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर टेबल, टेबल के अंदर रिकॉर्ड सेट, रिकॉर्ड सेट के अंदर फील्ड, रिकॉर्ड सेट को कॉलम्स बोलेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, उसको डेटाबेस एप्लीकेशन को रिकॉर्ड सेट ही समझ में आएगा। Yes, sir. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज ठीक अ है। फील्ड, जो अगर मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, एक एम्प्लॉय टेबल फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें एक आईडी Okay. रहेगा, नेम रहेगा, ठीक है, इसका सैलरी, Okay. एड्रेस, और क्या डाल सकते हैं, आधार, और डेस्टिनेशन। डेसिग्नेशन, वेरी गुड, बस बराबर, ठीक है। बस। हाँ, आईडी 1 2 3 4 5, ठीक है, नेम कुछ नेम डालते हैं, XX, सैलरी इसका कुछ डालते हैं, ठीक है, आधार नंबर कुछ Okay. डालते हैं, ठीक है, डेसिग्नेशन इंजीनियर समथिंग, ओके, Okay. इसका वाई वाई का सैलरी कुछ 60,000 समथिंग, ओके। Okay. सीनियर इंजीनियर, ओके, Yes, sir. ZZ XZ,
तो कुछ आधार कुछ तो ठीक है Yes, sir. हमने उसका कोई पेमेंट आपका ठीक समथिंग मैनेजर ओके यहाँ पे ये जो चीज है ना इसको हम एक रिकॉर्ड सेट बोलते हैं ठीक है ओके सर पूरा एक ओके रिकॉर्ड सेट है ना इसको देख के ये पूरा इंफॉर्मेशन देखा होता है सर क्या समझ में आ रहा है एक्सेप्ट बोल के एक एम्प्लॉय है उसका सैलरी इतना है उसका एड्रेस ये है इसका आधार नंबर ये है ये एक इंजीनियर है हम एक कहानी वी कैन मेक अ स्टोरी फ्रॉम दिस one line of information right from this one row ओके सर it clearly says it completes one complete record set एक set of record है for the same employee id one for that xx employee पूरा record है करेक्ट एक रो है करेक्ट एक तो डेटाबेस में उसको रो नहीं बोलते रिकॉर्ड सेट बोलते हैं ठीक है क्लियर if you say if you take in this manner okay ओके column wise id में 1 2 3 छोड़ के कुछ ज्यादा नंबर या कुछ न्यू अल्फाबेट आ सकता है आईडी में अल्फाबेट आ सकता है क्योंकि मैं आईडी में खाली नंबर यूज किया हूँ ठीक है तो ये खाली नंबर ही एक्सेप्ट करेगा अल्फाबेट नहीं एक्सेप्ट करेगा करेक्ट आर यू अंडरस्टैंडिंग यस सर हेलो हेलो या you are with me यस सर okay so this is it boring for you you don't want the details you will go directly to the report but you are not going to learn anything from there without showing all these things if I go to the report you are not going to understand 100 times if I show also you are not going to understand because nobody is teaching me okay because I know the basic I'm doing on my own if you think this is or not relevant to you you will skip this सर skip this continue to database go to database okay so you know all these things you don't need this fine सर्विस तो आप एक बार इसमें यहाँ हेलो हेलो हाँ कितना fine you have a table okay yes okay fine and I think we have training what is this Movicon SCADA basic training 19 Acha. So this is a different database so from where you got this follow okay fine no issue we will create for this you create a ODBC fine so how to create a ODBC okay directly using Movicon you can go to you have to just change the ODBC connection here so you know what is a ODBC it's a security check for you right so you before you are okay sending some data you have to inform to your security that so and so person is going to come there so, and what is that person whether he is from which company what is that details you have to send now you want to put it on SQL Express so you need to select SQL Express not server okay not SQL server you are having SQL server Express edition only so you need to select Express only fine and ensure that in the ODBC is not something a part of Movicon or database it is a part of your operating system अगर आप कंट्रोल पैनल में जाओगे कंट्रोल पैनल के अंदर ODBC रहता है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर आप देखोगे तो you will get it ODBC okay it's part of your installation ये ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफॉल्ट चीज है
इसका और मूवीकॉन का या एसक्यूएल सर्वर का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है? ओके क्लियर नो? क्लियर सर। ओके फाइन। और हम ओडीबीसी डेटा सोर्स 32 बिट यूज करते हैं। तो 64 क्यों नहीं यूज करता? 64 क्यों नहीं यूज करता है? क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर जो एप्लीकेशन है वो 32 बिट यूज करता है। ओके और ये जो पोस्टग्री डेटाबेस बोल के कुछ डेटाबेस आजकल आया हुआ है वो 64 बिट यूज करता है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर नहीं। ओके, ओके so whatever it is using that only you can go for. So here you ensure that आपका ये जो हिस्लॉग है ना, ये मूवीकॉन ने खुद क्रिएट किया है। किसमें क्रिएट किया है? वो ऑटोमेटिकली मूवीकॉन क्रिएट करता है, एमएस एक्सेस ड्राइवर में क्रिएट करके रखा है, ठीक है? ओके और ऑलरेडी ये एमएस एक्सेस में है। मैं एसक्यूएल माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल में एस्टैब्लिश करूंगा कनेक्शन, वो कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होगा क्योंकि जो इंफॉर्मेशन मैं ऑलरेडी भेजा हूँ माइक्रो वो एमएस एक्सेस में है। ओके வருவேன் நான் ட்ரைனிங் எடுத்து ப்ராடக்ட்ஸ் 5 நாள் ப்ராடக்ட்ஸ் 4 இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் கமிங் மண்டே டு சார் ஃப்ரைடே. ஒன்றும் இல்லை, இவனை விட்டுட்டு நான் வரேன், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. செகண்ட் ஹாஃப்ல வரேன், செகண்ட் ஹாஃப்ல ஆன்சர் தான். இவனை ஆட் பண்ணிடுவான்டா, ஏதாவது ஸ்கிரிப்டிங்லாம் கிடையாது, ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. வரேன் இருக்காது பார்த்து சொல்லிட்டேன். நூறு ஃப்ரம் Kamal Environment. He is a new engineer in London. He is new for Movicon, so he's getting some basic training. हेलो Sorry, my manager was here. That's why I was speaking with him. Tell me. See, so already it ओके is with the MS Access. You cannot create with the Microsoft SQL. The system will not allow due to the security reason. Very simple. अगर अब आपके सिक्योरिटी को एक आधार कार्ड में एक फोटो भेजा है, जो फोटो भेजा है, जो बंदा आ रहा है, दोनों का मैच नहीं होगा फेस, तो वो सिक्योरिटी अलाउ नहीं करेगा ना। कोई भी चीज मैच नहीं होता है तो वो अलाउ नहीं करेगा, करेक्ट? करेक्ट So same cheese is happening. So if it already, if a ODBC is created with your project name, it will not allow you to create another. So please ensure that you are removing it before creating. Okay, I have removed it now. ठीक है, तो मूवीकॉन ठीक है सर ओडीबीसी खुद क्रिएट करता है, आपको मैन्युअली क्रिएट करने की जरूरत नहीं है. Until unless if you don't have an administrator rights, if you don't have, then you need to create manually. If you have administrator rights, Movicon will create automatically because Movicon is a golden partner for Microsoft. गोल्डन पार्टनर माइक्रोसॉफ्ट तो जो भी Microsoft में आप कर सकते हो वो खुद करता है. फाइन, ठीक है. तो यहाँ पे जाके आप एसक्यूएल सर्वर सेलेक्ट कर दिया और ओडीबीसी सेटिंग पे जाके लोकल स्लैश एसक्यूएल एक्सप्रेस ऑलरेडी रहता है, ये स्कीमा ऑलरेडी रहता है. ये लोकल का मतलब ये है, आप कभी लोकल होस्ट यूज किया है? नो सर लोकल होस्ट बोल के एक चीज है, ये क्या करता है? ये आपका खुद का सिस्टम का आईपी एड्रेस को डिनोट करता है. ओके, आपका खुद का सिस्टम का सर्वर नेम लोकल होस्ट है, आपका खुद का सिस्टम का आईपी एड्रेस 127.0.0.1 वो हम ऑलरेडी देखा था. मेरे को आपका आईपी एड्रेस पता होना की जरूरत नहीं है. अगर आपका डेटा एक एप्लीकेशन से दूसरा एप्लीकेशन उसी सिस्टम के अंदर ट्रांसफर होता है तो 127.0.0.1 यूज कर सकता हूँ, करेक्ट? ओके सर करेक्ट करेक्ट. सेम वे to mention myself, I know what I am, right? I no need to address myself, I no need to call myself. No, if I want to call you, I will call with your name Noor. If I want to call myself, I will not call myself with my name, correct? Same thing, if anything is available within the same system, okay, you can
Okay. Not required to use the system name. ये क्या है? ये आपका system name है. Okay. Go to the system information. ये क्या है? Okay. आपका This is system. system name. हाँ, आपका Okay. system name खुद बोलने की जरूरत नहीं है, ऐसा भी कनेक्ट कर सकता हूँ. ठीक है. अगर मैं instead of this, if I give local, then also it will connect because it knows who is local. आपके एरिया में आप लोकल ही हो ना. कोई Yes, sir. आपका नाम बोलने की भी जरूरत नहीं. वो बंदा जो इस स्ट्रीट में ये एरिया पे रहता है, उसका नाम क्या है? तो हाँ, वो बंदा, उसका नाम नूर है, वो लोग खुद बोलेगा Yes, because sir. you are local there. Correct. Correct. Yeah, same way you can use local slash SQL Express, or you can use dot also. Everything denotes the same. Clear? Everything is same only. Clear. You can denote like this, you can denote like local, or you can put your complete instance name or schema name. ठीक है, सब कनेक्ट ठीक है. करता है. तो इससे एडवांटेज क्या है? अगर आप ये बैकअप को, डेटाबेस बैकअप को और ये मूवीकॉन बैकअप को एक दूसरा सिस्टम में डालोगे, उस दूसरा सिस्टम में उसका सिस्टम नेम अलग रहेगा, ये सिस्टम का नेम नहीं रहेगा. करेक्ट. ये सिस्टम, ये करेक्ट सर, ये चेंज हो जाएगा. चेंज हो जाता है. इसलिए आप हम्म. लोकल यूज करो या डॉट यूज करो, तब वो खुद Okay. आपका उस साइट सिस्टम के अंदर जो डेटाबेस है उसमें कनेक्ट करेगा. सर एक यही एडवांटेज है. साइट में एक सर एक साइड में मेरा एक मशीन है, उसमें ना मैंने ना क्रिएट करके एक नाम, पर्टिकुलर नेम डाल दिया और बैक स्लैश करके एसक्यूएल डेटा एक्सप्रेस नहीं डाला सर. अब उसका मैं ओडीबीसी कनेक्शन कर रहा हूँ सर, क्रिएट नहीं हो पा रहा है टेबल एसक्यूएल में. देखो, उसका क्या आपका रीजन हो इंस्टेंस सकता क्या है? क्या, एक मिनट एक मिनट. आपका इंस्टेंसेस क्या ओके. क्या है, पहले आपको वो समझ में आना चाहिए. आप एक नया जहां पे ओके. जा रहे हो, वहां पे लाइक हाँ. यू आर गोइंग टू अ न्यू, you are shifting your house. Okay. In your ओके. old house, your bedroom may be located first in the entrance, but in your new house your bedroom may be in the second room. You need to know first where, what are all the things are there. First you are going to your, first you are going to your new system. In that system आपने पहले SQL Express इंस्टॉल कर दिया. पहले आप जाके ये चेक करो कि कितना क्या क्या इंस्टेंसेस है. यहाँ पे जाके ये चेक करो, इसमें कोई ना कोई चीज ओके. ये आप कनेक्ट कर सकते हो. करेक्ट. जैसे किसी सिस्टम में सर एक वन ही रहता है सर, और कोई अदर ऑप्शन ही नहीं है. करेक्ट, वो नहीं रहता है तो वही चीज आपको ओडीबीसी में भी देना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, ओके. यहाँ पे ये चीज है मेरा. ओके. ओके. मेरे को ये सारी कॉपी करके मेरा मूवीकॉन में यहाँ पे देना पड़ता है. ओके. करेक्ट. ये ओके. देने के पहले, ये करने के पहले प्रीवियस स्टेप क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी बोला था. ओडीबीसी 32 बिट में जाके, ये आपका मूवीकॉन का प्रोजेक्ट नेम है ना, आपका मूवीकॉन का प्रोजेक्ट नेम जो भी हो सकता है, अंडरस्कोर यस सर. हिस्लॉग अंडरस्कोर डीएलआर बोल के, कोई भी ओडीबीसी नहीं है बोल के आप पहले कंफर्म करो. अगर मेरा ओके. मेटल मैन डीएलआर है, मेटल मैन आपका एक प्रोजेक्ट है, उसका हम्म. अंडरस्कोर डीएलआर अंडरस्कोर ट्रेस डीबी बोल के ऑलरेडी क्रिएट हो चुका. फॉर एग्जांपल, सैंपल आपका प्रोजेक्ट है, सैंपल का एमएस एक्सेस में क्रिएट एमएस हुआ है. एक्सेस ड्राइवर. तो एमएस यस. एक्सेस में अगर क्रिएट हो गया तो एसक्यूएल में नहीं होगा. कैसा होगा? आपने बोल दिया ना सिक्योरिटी को, you accept the connection only if it is MS Microsoft Access, then it will not create in ओके. SQL. Correct, no? ओके. You only told. करेक्ट सर. So remove it and then you do this settings. It will work. Before doing this setting in the site, go to the ODBC data source. Your first thing should be going to the ODBC data source and see whether any hislog or underscore DLR is available or not with your project ओके. name आई underscore चेक इट. DLR.
अंडरस्कोर ट्रेस डीबी, अंडरस्कोर हिस्लॉग, ऐसा कुछ अवेलेबल है कि नहीं देखो। अगर ऑलरेडी अवेलेबल है इन एम, यू चेक दैट वेदर इट इज इन एसक्यूएल और इन एमएस एक्सेस। इफ इट इज इन एमएस एक्सेस प्लीज रिमूव। ओके। करेक्ट नो? क्या सर क्या सर वो साइड वाले डेट पीसी को ले सकते हैं लाइन पे? आप लेके आप करो, फिर मैं इतना सारा आपको एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है, मैं ही खुद कर दूंगा ना उधर। हाँ Motto ठीक है सर, here हम is कर। you want to do it. If you face any problem, then you come to me. ओके सर, I ओके। can do. I am doing it from past 15 years. I can do. ओके सर। Okay. ओके। Yeah. Fine. So you either use like this. Always have a practice of using like this. क्योंकि जब आप सिस्टम एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम या बैकअप ट्रांसफर करोगे, वो उनका खुद का लोकल का डेटाबेस कनेक्ट कर लेगा। ओके सर। अगर यहाँ पे आप ये सिस्टम का नेम दे दिया, होस्ट नेम, ये सिस्टम का होस्ट नेम आपका साइट पीसी का होस्ट नेम अलग अलग रहेगा, मैच नहीं होगा तो यस। कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश नहीं होगा डेटाबेस। ओके सर। ठीक है, इधर यूज लाइक दिस और यूज लाइक डन। डन। नाउ यू नो नीड टू गिव एनी डीएसएन नेम, मूवीकॉन क्रिएट्स इट्स ओन, और उनको क्या क्रिएट किया हूँ वो उनको खुद पता है, तो आपको कुछ डीएसएन नेम देने का जरूरत नहीं है। ओके। जस्ट क्रिएट डीबी। क्रिएट। डीबी क्रिएट करने के बाद ओके, ओके। आप ओडीबीसी में जाके चेक करो। क्रिएट हुआ एसक्यूएल सर्वर नेगेटिव। यस एसक्यूएल सर। का run। क्योंकि मैंने ऑलरेडी एमएस एक्सेस में था वो रिमूव कर दिया, इसलिए ये अलाउ किया है। यस सर। ऑलरेडी किसी ने ऑक्यूपाई करके रखा है, कब्जा करके कोई लैंड को रखा है, तो दूसरा जाके वहां पे स्टे नहीं कर सकता है ना। पहले वो कब्जा को हटाना है, पहले अब जो भी पुराना है वो हटा के नया क्रिएट करो। ठीक है, स्पीकर में कोई दिक्कत नहीं। ओके। और ये वो एग्जैक्टली कनेक्ट किया है कि नहीं है वो चेक करने के लिए फिर आप ओडीबीसी में जाओ। ओके। एसक्यूएल नेटिव क्लाइंट में है ना, एक बार टेस्ट ये नेक्स्ट कीजिए। ठीक है, ये देखिए ट्रेनिंग अंडरस्कोर 15/20/24 बोल के एक डेटाबेस ही क्रिएट कर दिया। यस सर। आपने नहीं क्रिएट किया है, वो खुद क्रिएट किया है मूवीकॉन ने। टेस्ट कनेक्शन किया तो कंप्लीटेड सक्सेसफुली आना चाहिए। ओके। फाइन, क्लियर ना? फाइन सर। तो अभी चेक करेंगे यस सर। डेटाबेस में हुआ कि नहीं। हाँ, रिफ्रेश रिफ्रेश करके चेक कर सकते हैं। आई जस्ट रिफ्रेश दिस, गॉट क्रिएटेड राइट, यस। इट इज देयर इन स्लैश एसक्यूएल एक्सप्रेस। आपके पास बहुत सारा इंस्टेंसेस है, मैं स्लैश एसक्यूएल एक्सप्रेस में क्रिएट किया हूँ। ठीक है, वो भी आप देख लो। आपके पास बहुत स्कीमास है ये सिस्टम के अंदर। अगर कैसा पता चला मेरे को, यहाँ पे जाके अगर मैं ब्राउज मोर करूंगा तो जितना भी इंस्टेंसेस है ये सिस्टम के अंदर, सारे इंस्टेंसेस या स्कीमास मेरे को दिखाई दे रहा ओके। है। इन सारे में डेटाबेस इन जनरल। मैं खाली इसमें क्रिएट किया हूँ, और आपका जो सैंपल एप्लीकेशन है ना, जो सैंपल है डेटाबेस, वो डेटाबेस इस स्कीमा के अंदर है। ये ओके खाली आपका सर, सर्वर नेम है। हाउ टू क्रिएट स्कीमा सर? स्कीमा को कैसे क्रिएट करते हैं सर? मल्टीपल टाइम्स आप एसक्यूएल सर्वर को इंस्टॉल करो, एक एक बार एक स्कीमा में इंस्टॉल इंस्टॉल करेगा वो। आपने इतना सारे बार इंस्टॉल किया है। ओके। तो अलग अलग स्कीमा हुई, जितनी बार इंस्टॉल करेंगे उतना स्कीमा होगा उसका। करेक्ट। करेक्ट सर। ठीक है, ओके। फाइन, ये हो गया। तो इसमें टेबल भी क्रिएट करके रखा होगा। आपका प्रोजेक्ट का जो भी अलार्म्स है, ड्राइवर्स है, सिस्टम लॉक्स है, ये टेबल के ये तीनों टेबल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ओके।
हाँ, अभी हम डेटा लॉगिंग करेंगे। डेटा लॉगिंग करने के लिए डेटा लॉगर यूज करते हैं। एक नया डेटा लॉगर क्रिएट करने के लिए ऐड न्यू डेटा लॉगर, एंड आई विल नेम इट एज mod simulator है ना, log। I यस, just name it as mod मोड simulator। सिमुलेटर। ठीक है। ओके। क्रिएट हो गया। इसके अंदर एक एक कॉलम्स आप क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, टाइम ज्यादा लेगा। उसके बाद उसमें आप जो वेरिएबल को लॉक करना चाहते हो वो आप लिंक कर सकते हो। ओके। ठीक है। अभी ऐसा करने से ओके। बहुत टाइम लेता है। इसको भी मेरे को उसके हिसाब से कुछ कॉलम नेम चेंज करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दिस स्टेप्स, ओके, इजी वे इज जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। गो टू योर रियल टाइम डीबी। अब जो भी डेटा को लॉक करना चाहता है, ठीक है, इन माई केस में इतना सारी डेटा को मैं लॉक करना चाहता हूँ। ठीक है। ड्रैग ड्रॉप हो गया, ड्रैग ड्रॉप। दिस इज वेरिएशन या। ठीक है। यस सर। हाँ, और ये कैसा है, यू वांट टू रिकॉर्ड ऑन टाइम फ्रीक्वेंसी। आप देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ लॉगिंग हियर इन डेटाबेस इन मूवीकॉन। Based on the time, you can log data, time interval, every second, every minute, every hour. Okay. Based on command, ओके। मतलब एक बटन आप दे दोगे, उस बटन को मैं प्रेस करूंगा तभी लागू होगा। ओके। वो भी टू टाइप्स है। कैसा है, जब तक वो बटन ऑन है तब तक एक टाइम फ्रीक्वेंसी में लॉगिंग। फॉर एग्जांपल एक फर्नेस एप्लीकेशन है, जब फर्नेस बैच ओके। स्टार्ट होता है तभी मेरे को फर्नेस का लॉगिंग करना है, एवरी वन वन सेकेंड। जब वो बैच एंड ओके। हो जाता है तब मेरे को लॉगिंग भी बंद करना था, बंद होना है। उसके बाद उनका टेम्परेचर वगैरह में लॉक करके क्या फायदा। when batch is not there, यस सर। what is the use of logging those data? No use, correct? So one करेक्ट। is such thing, one more is एक बार आप प्रेस करोगे एक लॉग होगा, दो बार प्रेस करोगे दो लॉग होगा। Two यस types of सर। on command logging, okay, and one more is record on ओके। change। on change मतलब ये जो 6 डेटा यहाँ पे डाला हूं ना, इन पे जो भी एक डेटा चेंज होगा एक लॉग होगा डेटाबेस में। सारे ओके। सारे वेरिएबल को लॉग करेगा अलोंग विद द चेंज वैल्यू। ओके। जब V1 चेंज होगा तब I1 I2 I3 V2 V3 का क्या डेटा था और V1 का क्या डेटा था वो एक लॉग होगा। जब V2 चेंज ओके। होगा तब भी सारी चीज लॉग होगा विथ चेंज्ड V2 वैल्यू। दैट इज ऑन चेंज। ओके। ऑन चेंज हम कम करते हैं जब किसी को एक्स वाई प्लॉटिंग करना पड़ता है और वेरी शॉर्ट टाइम में लॉगिंग करना है। टेस्ट ट्रिक एप्लीकेशन में ऐसा होता है, कोई टेस्ट करते हैं तो एक्स वैल्यू वाई वैल्यू दोनों को लॉग करके चेक करना पड़ता है, हिस्टोरेसिस लॉसेस। ओके। उस लॉगिंग में मैं ऑन चेंज का यूज करता हूँ। रिकॉर्ड ओके। ऑन चेंज। अभी फिलहाल हम रिकॉर्ड ऑन टाइम फ्रीक्वेंसी करेंगे। और ये सारे चीज ना वो जो सैंपल एप्लीकेशन आपको शेयर किया था उसमें है। हाँ, मैंने सर चेक किया था उसमें। ठीक है। तो अभी हम खाली ओके। ऑन टाइम देखेंगे, एवरी 5 सेकेंड्स। ठीक है। कितना दिन, इतना 730 डेज मत डालिए। अभी फिलहाल मैं कुछ 90 डेज डालता हूँ। ठीक है। या ओके। कुछ 10 डेज डालते हैं। ठीक है। 10 डे में डालूंगा डेटा फॉर एवरी 5 सेकेंड्स। कितना रिकॉर्ड होगा, 17। 1,73,800। ठीक है। अगर मैं 30 सेकेंड्स डालूंगा तो 28,000 हो जाएगा, वो अपने आप कैलकुलेट करेगा। ठीक है। तो आपको एक ओके। आइडिया मिलेगा कि अगर मैं एक 10 दिन डेटा स्टोर करने वाला हूँ कि कितना रिकॉर्ड्स होना टेबल में क्रिएट होगा बोल। ओके। ठीक है। ठीक अभी हम 30 सेकेंड्स ही डालेंगे, 10 डेज डालेंगे चलेगा। ओके। है। टाइम फ्रॉम टाइम। ये ये टाइम फ्रेम है। अगर आपका सोलर एप्लीकेशन है ना,
आपका सोलर एप्लीकेशन में आपका सनराइज जब राइज होगा, जब सेट होगा, उतना टाइम का ही डेटा वोल्टेज करंट केडब्ल्यूएच लॉक करना है। नाइट टाइम पे लॉक करके क्या फायदा, क्योंकि नाइट टाइम तो सोलर पैनल काम करने वाला नहीं है। जब यस आप ये वाला एनेबल डे फीस यूज कर सकते हो, और यहाँ पे यूजुअली 6 o'clock इन द मॉर्निंग, 6:30 थोड़ा सा यस सर सनराइज स्टार्ट होता है। और 6:30 मतलब इन रेलवे टाइम यू हैव टू एंटर यस 18, सर 18:28 में एंड। तो ये 30 seconds from 6:30 from the morning to 6:30 in the evening only the logging will happen। उसके बाद लॉगिंग नहीं होगा। ये आपका इनेबल डे टाइम फ्रेम, ठीक है। पर आपका ठीक है एप्लीकेशन सोलर एप्लीकेशन नहीं है, तो ये इनेबल करने का जरूरत है। जब ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट आता है तब आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। ओके Basically, you can define the timing, not 24 hours in a day. Some particular time only you want to log data. For example, some shift ओके wise आता है किसी किसी का, 6 o'clock से लेके 12 o'clock तक एक शिफ्ट, फिर 12 o'clock से लेके 12 के लेके शाम 8 बजे तक एक दूसरा शिफ्ट, शाम 8 से लेके अगेन नेक्स्ट डे 6 o'clock। वैसा कुछ काम करना है तो आप जब ये, तब भी आप ये एनेबल डे टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी नहीं, अभी छोड़ दीजिए। अभी वी वांट 24/7, 24 hours लॉगिंग। ओके तो अगर आपको ओके 24 लॉगिंग चाहिए तो ये यूज करने की जरूरत है। तो अभी मैं क्रिएट डीबी टेबल करूंगा, ठीक है। ये लॉग हैज ओके बीन क्रिएटेड हैज बोल बी रहा है। क्रिएटेड हाँ, तो एक बार ओडीबीसी में जाके चेक कर लीजिए कि कुछ नया ओडीबीसी क्रिएट हुआ कि नहीं अभी ये डेटाबेस के लिए, क्योंकि मूवीकॉन उसका हिस्टोरिकल लॉग्स क्रिएट करने के लिए एक ओडीबीसी क्रिएट करता है, अलग कनेक्शन, और डेटाबेस लॉगिंग के लिए एक अलग कनेक्शन क्रिएट करता है। कभी कभी कोई भी, ओके ओके, दो ओके दो डिफरेंट कनेक्शन फॉर द सेम डेटाबेस। Suppose if any one connection has got bad, it can use the another for that reason। अगर आपका लॉग्स क्रैश हो गया, कम से कम डेटाबेस लॉगिंग तो होगा। अगर अब डेटाबेस क्रैश यस हो गया, कम से कम लॉगिंग तो होगा, लॉग लॉग फाइल्स तो लॉग यस होगा। इसलिए टू यस सर डिफरेंट कनेक्शंस क्रिएट करता है फॉर द सेम डेटाबेस। अभी आप देखा डीएलआर भी क्रिएट होगा, पहले डीएलआर खाली हिस्टोरिकल लॉग। ओके इट्स लाइक, सर डीएलआर के लिए हमने वो डाल रखा है कि ओडीबीसी इसमें प्रॉपर्टीज में क्या पार्डन, अरे यहाँ पे आपने एक बार कर दिया ना, वो सारे चीज को हाँ ले लेगा वो अपने आप। यहाँ वन पे, टाइम करना पड़ता है यहाँ पे यहाँ पे एक टाइम करना पड़ता है बस। ओके एक टाइम करके यहाँ पे नीचे क्रिएट टेबल, ठीक है, फॉर योर अलार्म्स ओके ड्राइवर्स एंड सिस्टम। और डेटाबेस में जाके एक एक डेटाबेस क्रिएट करके क्रिएट टेबल, ओडीबीसी देने का ओके जरूरत नहीं है। मूवी कन ओके खुद सर क्रिएट कर लेगा। अभी क्रिएट किया ना, ओके ओके सर ठीक है। क्रिएट टेबल तो हो गया। अभी हम चलाएंगे, देखेंगे कि एवरी 30 seconds लॉग हो रहा है कि नहीं। अभी इसको रिफ्रेश किया तो वो नया टेबल भी क्रिएट होना चाहिए, करेक्ट। करेक्ट और इसके अंदर आप देखो 12:38 में लॉग हुआ है, 30 seconds चला था ना। तो एक यस 30 seconds के एक एक बार एक एक लॉगिंग वो अपने आप करता रहेगा, उसका काम वो करता रहेगा, आप उसका चिंता करने के लिए जरूरत नहीं, ठीक ओके है। अभी ये चीज को ट्रेंड में कैसा देखना है, वो अभी मैं ये देख के इसी चीज को मैं रिपोर्ट में जनरेट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ओके सर ओके तो अभी मैं ट्रेंड के लिए स्क्रीन बना दिया ऑलरेडी, राइट। यस यस सर
यहाँ पे जाके मैं आई विल जस्ट शो यू टू ट्रेंड्स. You go to the trend object. Okay, एक है horizontal trend. Okay. Don't go to plotter. Plotter is live. It is not historical. Trend is historical. Okay. Okay. क्योंकि ये स्पेस एक दूसरा ट्रेंड दिखाने के लिए मेरे को चाहिए, इसलिए मैं खाली हाफ ऑफ द स्पेस में कंज्यूम किया. ठीक है. यहाँ पे Okay. क्या दिया हुआ है इसका प्रॉपर्टी में? Data logger link. आपने कितना डेटा अगर क्रिएट करके रखा है? खाली एक. वो तो लिस्ट होगा. एक. अगर आपने क्रिएट कर दिया तो वो Okay. लिस्ट होगा. Okay. रेफ्रेश पेन सारे वो खुद ले लेगा, उठा लेगा. नहीं तो आपको यहाँ जाके एक एक ऐड करना पड़ता है. ये सब मत करो. Okay. आप रेफ्रेश कर लो. सारे डेटाबेस में जो पेन्स है सारे डेटा पेन को उठा लेगा. ठीक है. Okay. और उसका स्केलिंग भी ऑटोमेटिकली वो करता है. पर अगर आपको पता है तो उसका ऑटो स्केल हटा के करंट तो वैल्यू 0 to 50 तक ही मेरा मैक्सिमम चलेगा. तो वो आप मैन्युअली कर सकते हो. और करंट का वैल्यू I1 मेरे को रेड कलर दिखाना है. I1 I2 I3 रेड RYB रेड ब्लू येलो में दिखाना है. रेड रेड येलो ब्लू में दिखाना है क्योंकि करंट वैल्यूज है ना. तो ये कस्टमाइजेशन खाली आप करो, एक एक मत करो. ठीक है. 0 to 50. और आप चाहिए तो फॉर्मेट एक्स्ट्रा टेक्स्ट कर सकते हो. करेक्ट. पर यहाँ पे एक्स्ट्रा टेक्स्ट का कोई फायदा नहीं है. आपका फ्लोटिंग पॉइंट नहीं है. आपका खाली वर्ड है. सिमुलेशन डेटा है ना, वर्ड डेटा ही है. इसका येलो करता हूँ. Integer. स्केलिंग आप करो. एक ना एक का स्केलिंग विजिबल कर दीजिए ताकि करंट का स्केलिंग अलग है. 0 to 50 है. वोल्टेज का 0 to 230 तक आएगा. करेक्ट. Okay. RYB तीनों करंट का कर दिया मैंने कॉन्फ़िगरेशन. अब वोल्टेज का करता हूँ. वोल्टेज का एक स्केल विजिबल करके 0 to 240 250 करेक्ट तक जा सकता है. तो 250 दे दिया. और इसका वोल्टेज है ना, ये भी रेड कलर. वोल्टेज का करंट का थोड़ा सा डिफरेंशिएशन दिखा सकते हैं मैं. तो इसका पेन साइज थोड़ा बड़ा करता हूँ करंट से कंपेयर किया तो. और इसका इंस्टेड ऑफ सॉलिड आई कैन टू डैशेस. तो इट विल डिफरेंशिएट एंड टेल मी वोल्टेज का सारे डॉटेड लाइंस में आएगा और करंट का कंटिन्यूअस पेन आएगा बोल. जस्ट टू डिफरेंशिएट. ओके. Okay, sir. 0 to 240 दिया था, 250 दिया था. 250 राइट. 250. येलो. और ये कितना पेन साइज दिया था? 3 दिया था सर शायद. Fast. विजिबल कर दिया ऑलरेडी. कर रहा हूँ कि नहीं? कस्टमर के साथ हूँ कि नहीं? 57 16 GB. कौन सी प्रोजेक्ट? मूवीकॉन का स्कैडा एप्लीकेशन टू बी इंस्टॉल. कौन सी स्कैडा? उसका कुछ आता पता होना चाहिए ना. माँ बाप को ही तो होना चाहिए ना. स्कैडा तो बहुत सारा स्कैडा है. मूवीकॉन भी एक स्कैडा है. विनसीसी है. मूवीकॉन नेक्स्ट है. कोडरा है.
What is the various applications then? ಯಾವ್ದು ಇಷ್ಟ ನಮ್ದೇನಾ ಹಾ ಅದಕ್ಕೇನಾಯ್ತು ಟೆಂಪ್ರರಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು IPC ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾ ಹಾ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡು ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿ ನಾವು ನಮ್ದು ಸ್ಕ್ಯಾಡಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡೆಮೋ ಹಾ ಡೆಮೋ ಎರಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮೂವಿಕಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಮೂವಿಕಾನೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹಾ ಆ ತರ ಹಾ ಅದೇ ಮೂವಿಕಾನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ okay done you see all the voltages are in dotted lines and yeah only two scales is enough right so one scale is extra is there which I will remove blue color one I will remove okay हटा देते हैं खाली दो वोल्टेज का स्केलिंग करंट का स्केलिंग बराबर है ना and to display the displays properly we will change the pen size and things like that pen area ठीक है इसका font size थोड़ा बड़ा रहता है इसका टाइम एरिया भी थोड़ा बड़ा रहता है sufficient यूज ಮಾಡ್ತಾ हैं ना आ डिटेल्स कम से कम चाहिए ऐसा हम्म, हाँ बात करूंगा ये बंदा का इसका क्या काम है वो कस्टमर के साथ नहीं है okay so it will retrieve the previous data also fine and it will show the live data also for you. So a particular current value if you want to see that also you can see okay अभी फिलहाल इतना ज्यादा लॉगिंग नहीं हुआ है जैसा लॉग होगा उतना डेटा सबको आएगा ठीक है और डेटा एनालिसिस भी दिखा देता हूँ और रिपोर्ट करके क्लोज कर देंगे डेटा एनालिसिस के लिए एक दूसरा ट्रेंड ले लेता हूँ go to toolbox take the data analysis trend now No, that's something mistake in the drawing. I did not put same thing you select the data logger link refresh pens okay edit pen you want you can change only the colors yellow blue again red yellow blue
इसका पेन साइज थोड़ा बड़ा कर सकते हो ताकि इट विल डिफरेंशिएट बेसिकली द वोल्टेज एंड करंट, राइट? ओके, तो ये डेटा एनालिसिस हो गया, ये आपका डेटाबेस ट्रेंड हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या ओके एडवांटेज है मैं बताता हूँ। इसमें खाली आप ये जूम ऑप्शन एनेबल कर लो, मैं बताता हूँ। This logging, I will instead of 30, no, I will increase to every second so that more data will get populated. अभी बहुत कम डेटा है, खाली 2 डेटा है वहां पे, तो इसको मैं यस I just change it to 1 second, so you'll get more data. Okay. ओके ओनली 1 सेकंड में डेटा अपडेट होगा ये। करेक्ट। तो अगर आप अभी स्टार्ट करोगे तो पिछला डेटा अभी आप देख सकते हो। तो प्रीवियसली the data were there at this point, only 2 datas were there. Okay, ओके 17 and then the new datas are right now here. Here you see this, every ओके second it is logging. Okay, ओके पास मोड रन मोड दोनों ये दिखाएगा, ठीक है आपको। ओके ये जो डेटा एनालिसिस है, ठीक है, ये आपको खाली ओके रिकॉर्डेड डेटा दिखाएगा। जो इसमें क्या डेटा एडवांटेज है, रिकॉर्ड हुआ। जो डेटा रिकॉर्डेड है खाली वही दिखाएगा। इसमें क्या एडवांटेज है, आप ये डेट एंड टाइम में जाके आप उतना ही डेट का डेटा देख सकते हो। फॉर एग्जांपल 50 मिनट से लेके 51 मिनट तक कितना डेटा है, मैं खाली उतना का डेटा देख सकता हूँ। ओके, ओके और ओके चाहिए तो इसका माँ प्रिंट भी ले सकते, ठीक है। मेरे को खाली इसमें I1 और V1 चाहिए, ओके राइट। खाली उस और इन दोनों का डिफरेंस भी मैं मेजर कर सकता हूँ, कितना वेरी होता है, ठीक है, और उसका मैं प्रिंट कर सकता हूँ। तो आपका प्रिंटर, ओ माय गॉड, ये आपका डिफॉल्ट प्रिंटर जो है वहां पे चला जाता है। एक मिनट मैं सर हेलो। मैं क्रिएट पीडीएफ करता हूँ, ठीक है भाई। डिफॉल्ट वो आपका निट्रो डिफॉल्ट प्रिंटर है। माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ में नहीं आएगा क्या? आपका डिफॉल्ट प्रिंटर निट्रो प्रिंटर है, इसीलिए नहीं आ रहा है। उसको चेंज करना पड़ेगा ना हमको। तो इसको मैं मैनेज करके सेटअप, सेट डिफॉल्ट हाँ सेट डिफॉल्ट करूंगा या माइक्रोसॉफ्ट करूंगा, जो भी है। अभी मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टीज में जाके मैं ये भी पोर्ट्रेट में चाहिए, लैंडस्केप में चाहिए, वो भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, ओके अब जो भी डिफॉल्ट प्रिंटर है आपके पीसी में उसमें आएगा, इसका मेरे को कुछ लेना देना नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में सेव हो गया। कहाँ पे है? ये सर हाँ, ये डॉक्यूमेंट पे है। ओपन कीजिए, आ गया ना। यस सर
So like that directly you can take the graphs. Fine. You Okay. can select, for example, like आपको अगर zoom करना है, you can select the zoom option. You can select your required portions. यहाँ तक अगर मेरे को चाहिए, Okay. and double click this. Only those portions you can able to view and you can take print out. So here there are so many options. और for example मेरे अभी current minute ये है, ठीक है, previous minute का current minute का data भी मैं compare कर सकता हूँ, ठीक है. Okay. These are all this information. So you can see that no, previous year compared with the current minute. Okay. So these are all the options available which you can make use of it. This is a normal trend. Okay, historical trend. Okay. आप हिस्टोरिकल डेटा यहाँ पे यूज कर सकते हो और लाइव भी देख सकते हो. इसका और इसका फंक्शनैलिटीज अलग है. इसका भी आप प्रिंट कर सकते हो. इसको मैं लीनियर ट्रेंड बोल के सेव करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें डेट एंड टाइम Okay. वाइज आप नहीं ले सकते हो. इसमें डेट एंड टाइम वाइज आप ले सकते हो, दोनों का फर्क है. सर क्या इसमें एक कोई बटन बना के अदर विंडोज पे जा सकते हैं मूवीकॉन पे? मतलब नहीं समझ रहा हूँ. सपोज दैट हम जो टेबल का यूज करते हैं सर वो इंसर्ट टेबल का यूज करते हैं और एक्सेल रिपोर्ट जनरेट करने के लिए या पीडीएफ जनरेट करने के लिए विजुअल स्टूडियो को इस्तेमाल करते हैं. हम तो तो क्या यहाँ विजुअल पे कोई स्टूडियो ऐसा नहीं, बटन? हम तो डायरेक्टली मूवी का रिपोर्टिंग टूल ही क्रिएट करते हैं. वो मैं अभी दिखाता हूँ. इसी डेटा को रिपोर्ट जनरेट करके दिखा देता हूँ, ठीक है. तो अभी और एक नया लिंक भी क्रिएट हुआ है, करेक्ट, उसका भी ऐड करना है ना, फ्रेंड बोल के. हाँ. हम्म. तो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा. और ये ट्रेंड का है, का लिंक चेंज करना है ना, क्योंकि मैं खाली कॉपी पेस्ट किया. अभी पैरामीटर डिस्प्ले ही दिखाएगा. ओके. Now, next, we will see about report. तो रिपोर्ट के लिए और एक स्क्रीन क्रिएट करता हूँ, रिपोर्ट बोल के. ओके. हेडिंग पहले चेंज करता हूँ. रिपोर्ट. So we will create one button. Before रिपोर्ट के creating the लिए. button, we will create the report. We will design the report. Okay. पहले report का design ओके. करना है. So how to design a report using the data logger only. तो select data logger. ओके. यहाँ पे आपका एक ऑप्शन है, क्या है ये? रिपोर्ट फाइल. करेक्ट. तो create, पहले आप create the report file. It will open to a report designer. ये रिपोर्ट डिजाइनर प्लगइन है, इसका और मूवीकॉन का कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है. ये डिव एक्सप्रेस रिपोर्टिंग टूल है माइक्रोसॉफ्ट का. फाइन. तो यहाँ पे आप बस इतना देख लीजिए कि आपका डेटाबेस लिंक्ड है कि नहीं. आपका डेटाबेस लिंक्ड है, जो भी डेटाबेस था. यस सर. हाँ. अभी आप क्या करो, यहाँ पे एकदम ऊपर में एक हाइफन सिंबल दिखाई दे रहा है, इसको आप क्लिक करो. यस सर. डिजाइन इन रिपोर्ट विजार्ड स्टैंडर्ड, ठीक है. आपको जो रिपोर्ट में कॉलम्स आना चाहिए उसी का आप सेलेक्ट कर लो. ओके. पास इट. सेलेक्टेड. नेक्स्ट. नेक्स्ट. आपको टेबुलर कॉलम चाहिए, कॉलमर वाइज नहीं है, तो टेबुलर कॉलम सेलेक्ट कर लिया. मेरे को पोर्ट्रेट में चाहिए, पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर लिया.
थोड़ा बोल्ड चाहिए मेरे को हेडिंग। रिपोर्ट का नाम में डेट वाइज रिपोर्ट, ठीक है। स्टार्टिंग डेट और एंड डेट ना सर? हाँ करेक्ट, कर लिया। ओके। वो अपने आप, नहीं तो ये सारा चीज मेरे को एक टेबल उठाना पड़ता है ऐसा, और यहाँ पे सब जाके एक एक असाइन करना पड़ता है, टाइम टेकिंग। यस सर। Okay, like यस this I have to drag and drop and I have to assign. Instead I have used the wizard and I have created automatically, ठीक है। सर। ओके। करने के बाद आप ये सब you can play around, like I want it with this background, with black color, white color, this animations you do it. And here I want one more label which will tell my from date and to date, ठीक है, कौन से डेट से हाँ लेके। यस सर, किस डेट तक उठाना है? करेक्ट। तो ये दोनों यहाँ पे मैं असाइन करता हूँ। फ्रॉम, और फ्रॉम डेट का डेट उधर आएगा यहाँ पे, टू डेट। सर प्लीज वन मोर क्वेश्चन सर। हम्म। सर ये जो यहाँ पे आपने ये फील्ड लिस्ट पे है ना, ये कनेक्ट रहता है ना, ऑटोमेटिक स्क्वेल से कनेक्ट रहता है ना? हाँ करेक्ट, ओके। तो एसक्यूएल से कनेक्टेड है इसीलिए ये अपने आप उठा के दिखा रहा है, करेक्ट। ओके, बहुत इजी फॉर्म है। टू डेट, ठीक है। स्ट्रिंग नहीं है, डेट एंड टाइम है, तो आप डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर लो, एक दो पैरामीटर क्रिएट करो, क्योंकि इसके हिसाब से आप डेटा फिल्टर कर रहे हो ना। जो चीज आपको यस सर। फिल्टर करना है वो फिल्टरिंग पैरामीटर को आप पैरामीटर बनाओ, ठीक है। ओके। फाइन। और ये जो लोकल कॉल के लिए इतना बड़ा स्पेस का जरूरत नहीं, थोड़ा छोटा कर लेते, accordingly we can change this so that almost everything will be even. Okay, ओके। done now. Fine. डन। You select everyone and make them not top left but just middle center. It will be bottom middle center and so जो background है वो भी मैं can change it to better color. Text के लिए only white. एक एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो पूरा टेबल सेलेक्ट किया तो काम नहीं कर रहा है, तो एक एक सेलेक्ट करके मिडिल लेफ्ट था ना अलाइनमेंट, इसको जस्टिफाई, ठीक है। ओके। और इसका जो टेक्स्ट है आई मेक इट ब्लैक, दिस आई कैन मेक इट येलो, okay, somewhat presentable way. Same thing here, select everything, okay, I selected everything. This also I'll ओके। make it to not top left, justify, ठीक है। तो ये पेज नंबर तो खुद डाल दिया आपने आप, तो ये दोनों थोड़ा इस तरफ उस तरफ कर लेता हूँ, पेज नंबर के लिए इतना बराबर, ठीक है। आई एम टेकिंग वन मोर ओके। लेबल, कमल इन्विरोटेक। क्या है कमल इन्विरो इन्वायरोटेक। टेक प्राइवेट लिमिटेड। ओके फाइन, लेट इट बी लाइक दिस। ओके, ओके। फ्रॉम डेट है टू डेट है, थोड़ा इसको बोल्ड कर सकते हैं हम।
उनको, राइट। और यहाँ पे मैं फ्रॉम डेट टू डेट में क्या पास करूंगा, फ्रॉम डेट को फ्रॉम डेट में पास करूंगा, पैरामीटर को टू डेट को टू डेट। हो गया, ओके रिव्यू ओके। जा रहा हूँ। तो पहले और एक चीज भी करनी है, तो फिल्टर भी करना है, ठीक है। तो फिल्टर स्ट्रिंग में मैं क्या करूंगा, लॉजिक ऐड करूंगा, विच वन, टाइम कॉलम बिटवीन सो एंड सो फ्रॉम डेट एंड टुडे। तो आपका टाइम कॉलम क्या है, इधर लोकल कॉल ही टाइम कॉलम है आपका, इस बिटवीन, ओके, बिटवीन लोकल कॉल नो, बिटवीन फ्रॉम डेट। अगर यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, वो शिफ्ट होगा। हाँ So where here you can enter the value only, date and time only, which you want, don't want to hard code it, okay? Or you can ओके select your own database columns, or if you click one more time, it will change to your parameter. जो जितना पैरामीटर आप सेलेक्ट क्रिएट करके रखे हो वो सारी यहाँ पे लिस्ट डाउन होगा। तो अभी फ्रॉम डेट टू डेट ओके। सेलेक्ट कर, हो गया फिल्टर भी। यस सर। अभी मैं प्रीव्यू जाता हूँ, प्रीव्यू में फ्रॉम डेट आज का और कल का, सबमिट। तो इन दिन और का जो जो भी डेटा है सर वो मेरे को आना चाहिए, ठीक है। सर सर हाँ, ये ओनली जो डेटा लॉगर में है उसी को एक्सेप्ट करेगा ना सर ये? और किसी को एक्सेप्ट करें, डेटा लॉगर से ही मैं बनाया हूँ ना। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। आपका क्या है, आपका डेटा लॉगर से नहीं है ना, बाहर से है। तो उसके लिए यस सर। हमको एक डमी डेटा लॉगर क्रिएट करना पड़ेगा, वो जैसा ही, वो टेबल जैसा ही एक डमी डेटा लॉगर क्रिएट करोगी तो उसका टेबल वहां पे बना देगा, क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपका जो ओरिजिनल टेबल है वहां से सेलेक्ट हाँ करके ये डमी टेबल में इंसर्ट कर लो। और ये टेबल इसमें डेटाबेस में ये टेबल आपका रिपोर्ट डिजाइनर में लिंक्ड है, वहां पे डेटा आ जाएगा। आप एक मल्टीपल टेबल से भी डेटा उठा के एक स्टेजिंग टेबल, उसको हम स्टेजिंग टेबल बोलते हैं डेटाबेस में, ठीक है। ओके that are all very big concepts, that for that you need some basic knowledge on database, but because you have asked, I am telling you, staging table is something that, it is something like a stage. No data will be there permanently, जब उसका काम खत्म हो जाता है वहां से निकल जाता है। तो बार बार उस टेबल डिलीट करते हैं हम, फिर पॉपुलेट करते हैं जब चाहिए तब। और जब वो पॉपुलेट हो जाएगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद दूसरा एक क्वेरी, दूसरा बार हम रिपोर्ट जनरेट करते हैं, तब पुराना डेटा पूरा डिलीट करके नया डेटा पॉपुलेट कर सकते हैं। इसीलिए उसको स्टेजिंग टेबल बोलते हैं, ठीक है। ओके। स्टेज वही होता है ना। क्योंकि अब क्योंकि क्योंकि सर हम ना इंसर्ट की क्वेरी यूज करते हैं ना सर, हम हम्म, डेटा को इंसर्ट करते हैं, अब ये डेटा लॉगर नहीं करते, तो इसके लिए ना रिपोर्ट में तो ये डेटा लॉगर एक डमी बनाना पड़ेगा ना मुझे उसके लिए? डेटा लॉगर से ही बनाना पड़ेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप एक डमी डेटा लॉगर क्रिएट कर लो, ओके। फेक डेटा लॉगर, जो खाली वो टेबल ओ- क्रिएट करेगा आपका डेटाबेस में। तो आपका ओरिजिनल टेबल भी है, मूवीकॉन का बना हुआ टेबल भी है। तो ओरिजिनल टेबल से जो डेटा चाहिए वो उठा के वो मूवीकॉन का बना हुआ टेबल में नहीं डाल सकता है, डाल सकता है ना। यस सर। राइट एन एसक्यूएल क्वेरी, सेलेक्ट टेबल, इंसर्ट देयर, जैसा वो मूवीकॉन का टेबल में इंसर्ट होगा वो यहाँ पे लिंक हो हाँ जाएगा। ओके, तो मुझे एक्सक्यूएल में ये काम करना पड़ेगा कि जो ओरिजिनल डेटा है वो इसके डमी डेटा लॉगर में डालना पड़ेगा। हाँ, करेक्ट। वो उस एप्लीकेशन में मैंने किया होगा, सैम्पल एप्लीकेशन में। ठीक है, इसको मैं पहले सेव कर लेता हूँ। कुछ सैम्पल एप्लीकेशन ऐसा है तो मैं आपको शेयर करता हूँ, मेरे पास है कुछ, मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। टेक अ बटन, अभी तो लिंक करना है ना, तो इसको डेटाबेस
न्यू कमांड, अभी हमने खाली डेवलप करके रखा है, उसको लिंक भी करना है ना रन टाइम पे, वो लिंक मैं अभी कर रहा हूँ। ठीक है, व्यू सिंक्रोनस ऑफ फ्लो। ठीक है, अभी मैं ये बटन क्लिक करूंगा तो पूछेगा। ओके, वी कैन सेलेक्ट फ्रॉम द डेट, submit, it be created. You have so many forms to export. That's why I'm showing you in the data logger report. It's very flexible. HTML में चाहिए, HTML आप सेव कर लो। कहाँ पे पूछेगा, आप आपका डॉक्यूमेंट्स में रख लो अगर चाहिए तो। Okay. Do you want to open the file? Yes. And now it is available in the form of an HTML, which you can use just a browser to open and see those data. Okay. Okay. अगर Okay. आपको एक्सेल में चाहिए तो आप एक्सेल सेलेक्ट करो, the document only you keep it. तो आपके डेटा एक्सेल शीट में भी आ गया है। Okay, sir. ठीक है, Okay. ये एक्चुअली आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्चुअली डेट एक्सेल शीट में प्रॉब्लम है, जनरल नहीं है। आपको उसको डेट एंड टाइम सेलेक्ट करना है या लॉन्ग डेट सेलेक्ट करना है। Okay, sir. ठीक है, Okay. इसका और मूवीकॉन का कुछ लेना देना नहीं है। और अगर आपको पीडीएफ में चाहिए, पीडीएफ में आप ले लो। तो रिपोर्ट डिजाइनर से थ्रू क्रिएट करने से इतना सारे एडवांटेजेस है, खाली एक्सेल नहीं, जो फॉर्मेट में चाहिए उतना फॉर्मेट में आप ले सकते हो। Okay, करेक्ट, sir. Correct. तो आप रिपोर्ट डिजाइनर मैक्सिमम यूज करके आप डिजाइन करो। ठीक है सर। ठीक है, डेटा वाइज ये इंटरलिंक है ना सर इसका, डेटा वाइज का डेटाबेस का इंटरलिंक है क्या लिंक है, नहीं समझ रहा हूँ। ये डेटा डेटा वाइज। हाँ, हाँ, ये उसे डेट वाइज है, कनेक्शन कर, ये डेट वाइज खाली उसे मैं लिंक कनेक्शन कर करके रखा रखा है। हूँ। हाँ, कैसा लिंक करने हाँ, में आपको दिखाया था डेवलपमेंट टूल में। एक बटन लेना है और उसमें आप वो ओके डेटा लॉगर सेलेक्ट करना है। जो डेटा लॉगर से वो रिपोर्ट फाइल बनाया हुआ है, ये डेटा लॉगर से वो रिपोर्ट फाइल बनाया हुआ है। करेक्ट, ठीक है सर। तो आपको खाली वो ये यहाँ पे आपको वो डेटा लॉगर सेलेक्ट करना है और व्यू सिंक्रोनस करना है बस। ओके सर। और वो फिल्टर ठीक है। वगैरह सब फिल्टर में उधर ही डिजाइन में ही कर दिया है। ओके इधर ही करनी है ना मैंने, फिल्टर वगैरह भी लगा दिया ना इधर ही, यहाँ पे एक ठीक है फिल्टर सर। वगैरह लगा दिया ना, तो मेरे को कुछ करने के नहीं है, खाली बटन में क्लिक करना है बस। ओके सर। करेक्ट, और अगर इसको आपको डमी करना है तो आपको ये जो रिकॉर्ड ऑन टाइम ये जो है ना, इसको हटाना है, हाँ ये 0 करना है, तब ये डमी टेबल हो जाएगा। करेक्ट, मूवीकॉन से थ्रू कुछ ओके लॉगिंग नहीं होगा। करेक्ट ना, ओके तब आप करेक्ट। वहां से क्वेरी यूज करके इंसर्ट कर लो, एक छोटा सा स्क्रिप्ट इधर ही लिख दो डेटाबेस का, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अच्छा डेटाबेस इंसर्ट इनटू दिस डेटाबेस बोल के, टेबल नेम खाली अलग चेंज होगा। तो फिर इस डेटा वाइज का कनेक्शन इस पे करना पड़ेगा ना सर, हाँ, बेसिक स्क्रिप्ट ओपन पे। हाँ तो बेसिक स्क्रिप्ट से आप कर लो, वीबी कोड लिख लो। ठीक है आपको सर, इंसर्ट कोशिश क्वेरी भी करता हूँ। आता है, सेलेक्ट करो, आप कोशिश करो। नहीं तो आप मेरा वो ओके जो एप्लीकेशन है ना, मैं अभी आपको शेयर करता हूँ, ये वीडियो भी आपको ओके शेयर सर। करूंगा। मेरे को गिव टाइम टिल मंडे, इन मंडे आई विल जस्ट सेंड यू द sample application, this video whatever we are right now discussing, and some white papers and example applications are based on that should be quite good enough for you to do your own things. Okay,
ओके सर। रिपोर्ट को भी लिंक कर देंगे। दो बार तो वैसे खा जाता हूँ। तो आप बताइए अभी बच्चे मशीन पे ध्यान और एक बटन क्रिएट करना है, राइट? यस सर। इसका रिपोर्ट सेलेक्ट, एडिट, डिस्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्ट स्पेस, 2 columns, इसको तो बूस्टर देता है अपना ओपन स्क्रीन instead of trend, रिपोर्ट। और स्टार्टअप स्क्रीन कौन सा है वो भी आप बता दो। यहाँ पे स्टार्टअप स्क्रीन ऑप्शन रहेगा, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद वेलकम स्क्रीन दैट यू डिफाइन इट। तो हर बार जैसा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वेलकम स्क्रीन से स्टार्ट होगा, ठीक है? ओके वेलकम। करेक्ट। और आप लॉगिन कर सकते हो, डेटा से आ रहा है और आपका पैरामीटर डिस्प्ले है, ये आपका ट्रेंड ये है। ओके ट्रेंड में फुटर नहीं डाला और आपका रिपोर्ट स्क्रीन ये है, ठीक है? फुटर भी डाल देंगे, फुटर नहीं डाला है तो फुटर को खाली कॉपी पेस्ट करना है मेरे को, और कुछ नहीं है, क्योंकि सारे में फुटर में एक फुटर का एक एम्बेडेड स्क्रीन है वो, करेक्ट? वो तो कॉमन बना रखा है एम्बेडेड स्क्रीन। हाँ ऑलरेडी बना के रखा है, तो वो भी मैं यहाँ पैरामीटर डिस्प्ले में बना के रखा हूँ एम्बेडेड, तो वही चीज को कॉपी पेस्ट कर लीजिए। एक बार बनाओ, बाकी समय पे खाली कॉपी पेस्ट करो, वो वहां पे उसी लोकेशन पे ही पेस्ट होगा, ठीक है? और रिपोर्ट में कंट्रोल सी बस उतना ही कर रहा हूँ मैं, ठीक है? ओके सर। सेव, विंडोज, क्लोज ऑल, एंड योर एप्लीकेशन। लॉगिन, पैरामीटर स्क्रीन आ गया आपका, ट्रेंड स्क्रीन ये सेलेक्ट करना है, ट्रेंड स्क्रीन आना है, ठीक है? और ज्यादा थोड़ा सा भी डेटा आया हुआ है, रिपोर्ट स्क्रीन, रिपोर्ट, राइट? ओके आप ये देख सकते हो हेडर फुटर कोई शेकिंग नहीं है, कुछ नहीं है। हाउ गुड इट इज, एंड इट इज सम स्टैंडर्ड, राइट? इट इज वेरी सिंपल, रेक्टेंगल से बनाया हुआ चीज है ये, और इसका ऊपर कुछ ज्यादा कुछ डिजाइन वगैरह नहीं किया है, बट इट इज लुकिंग समवट डिसेंट, राइट? तो यूज द सेम ओके सर। सिनारियोस एंड इट विल बी इजी फॉर यू। अभी यहाँ पे फिलहाल 4 स्क्रीन है, कल 100 स्क्रीन 200 स्क्रीन आएगा, 100 एक एक स्क्रीन पे एक एक बटन नेविगेशन करना बहुत मुश्किल है ग्रुप करके, यस सर। तो आप एम्बेडेड ऑब्जेक्ट यूज करो, ओके सर। ठीक है? फाइन। नेक्स्ट वीक आई एम with one more company called they are coming here for paid service actually, उनका advanced service है, advanced training अच्छा है, तो 5 दिन I will be sitting with them. So if you want anything you can contact our Ratan, okay? He will be also in the ओके part सर। of the training, but in between he can come and he can help you, ओके? ओके थोड़ा सा एक 5 मिनट 10 मिनट का काम वो कर सकता है, पर not completely because he will also be involved in the training along with me. ओके तो ओके आप सर। नहीं तो आप पहले, वेट सर। मैं रतन को बोलता हूँ उसको वो सैम्पल एप्लीकेशन जो हमने बनाया हुआ है इससे थोड़ा बेटर है, स्क्रिप्ट वगैरह उसमें लिखा है कंट्रोल करने के लिए। अभी आप यहाँ पे ओके फ्रॉम डेट टू डेट डाल रहे हो ना, हाँ खाली फ्रॉम डेट डाला, टू डेट नहीं डाला ना, टू डेट 001 है, टू डेट भी कुछ देना है, 17 नहीं दे सकता, 18 17 इज नॉट करेक्ट, 18 19 देना है, 18 18 भी 18 18 भी सेम डेट एंड टाइम है ना भाई, 18 19 दे हाँ दो। एक 19। हाँ, आज से लेके कल तक, करेक्ट? ओके समझ गए ना आप? और आपको ओके एग्जैक्टली ये 12 AM से 12 AM तक ही रहेगा। अगर आपको वो टाइम भी डिफाइन करना है तो उसके लिए आप स्क्रिप्ट के थ्रू ही करना है, और वो सैम्पल स्क्रिप्ट मेरे पास है, वो सैम्पल एप्लीकेशन है, मैं आपको शेयर करता हूँ मंडे के पहले, रतन को बोलता हूँ शेयर करने के लिए, वो आपको कर देगा,
with the feedback form. एक्चुअली में सर जो आपने बटन बना रखा है इसको डायरेक्ट हम डिजाइनर पे जा सकते हैं इससे स्क्रिप्ट के थ्रू हाँ डेटा वाइज पे। हाँ वो वही डेटा बोल रहा लॉगर हूँ, को वो अनेबल बैकअप में करके देता हूँ। डमी बना। हाँ ओके तो वो डमी डेटाबेस भी बना के रखा हूँ उसमें, वो सारी चीज मैं आपको शेयर करता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया मिले। ठीक है सर। पर वी नीड ठीक टाइम, मंडे सेकेंड ऑफ के पहले हम भेजते हैं, ठीक है? ओके सर। ओके सर। फाइन, बाय। थैंक यू।